Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Welcome to maths class. Open your Falcon Maths of grade 3. Today we are going to do unit number 3 measurements, unit number 4 measurements. You already had done measurements in grade 2 and we know that first topic of measurement is length. According to your book, see on page number 49, here you have given standard unit of length is meter, and for smaller unit of length we used centimeters. See in blue rectangle, here you have information 1 meter equal to 100 centimeter, and in yellow we can see that 1 kilometer is 1000 meter. Kilometer is used to measure the longer lengths. Usually length is meters and centimeter used to measure how long an object or how much distance between two objects. Let's start. Remember these 2 points, that 1 meter equal to 100 centimeter and 1 kilometer equal to 1000 meters. When we reach 100 centimeter, it is called 1 meter, and when we reached at 1000 meters, it converted in 1 kilometer. Now let's start. To solve exercise 1 in your book, and here you have to do add the following units of length. Remember 1000 meter equal to 1 kilometer and 100 centimeter equal to 1 meter. It will help you to solve this exercise. Exercise 1, problem A. In your book we have problems horizontally. First convert them into vertically, then solve. ये देखें, इनको कॉलम में लिख लिया, किलोमीटर की हेडिंग अलग से, मीटर की हेडिंग अलग से, और फिर हमने किलोमीटर की वैल्यूज़ अकॉर्डिंग टू किलोमीटर कॉलम फिल कर दी और मीटर की मीटर के कॉलम में, जिस तरह यूनिट्स और टेंस में फिल करते हैं उस तरह. नाउ स्टार्ट फ्रॉम द राइट साइड, फ्रॉम द यूनिट साइड. एडिशन बिल्कुल उसी तरह है जिस तरह नॉर्मली हम ऐड करते हैं नंबर्स को राइट साइड से, और आपको पता है ज़ीरो में कुछ भी ऐड करें नंबर इटसेल्फ ही उसका आंसर होता है. 7, 8 + 5 13. पुट डाउन 3 इन आंसर. Take 1, carry to next in kilometers. Now add kilometers, 1 and 1, 2. Answer is 2 kilometer 376 meter. When we add 1 kilometer 500 meters and 876 meters. Let's do the next question. B from your book, exercise 1. Page number 50. See, here we have 1 kilometer 480 meters. To add in 1 meter 520, 1 kilometer 520 meters. Let's add them. 0, 10, take 1 carry to next. 5 and 4, 9, 1, 10 again. Put 0, take 1 carry to next. 1, 2 and 3.
add all these three ones, answer is 3. Now we have 3 kilometer in answer. Let's solve the next. सेम इसी तरह स्टूडेंट्स आपने किलोमीटर और मीटर्स की हेडिंग नेक्स्ट। अब सी में हमारे पास मीटर्स एंड सेंटीमीटर्स हैं सॉल्व करने के लिए। तो सेंटीमीटर मीटर से छोटा होता है, दैट्स वाई हम सेंटीमीटर को यूनिट साइड पर और मीटर को नेक्स्ट टेंथ साइड पर लिखेंगे। ठीक है, राइट साइड पर सेंटीमीटर, स्मॉलर टू ग्रेटर जाना है, तो जो स्मॉलर यूनिट है वो राइट साइड पर, ग्रेटर वन लेफ्ट साइड पर। अब हमारे पास सी पार्ट में 4 मीटर 4 सेंटीमीटर एंड ऐड टू 93 सेंटीमीटर इन इट। सो हम मीटर और सेंटीमीटर की हेडिंग बनाएंगे कॉलम्स और उसमें वैल्यूज़ पुट करने के बाद इनको ऐड कर लेंगे। 4 and 3 7, there is nothing to add in 9, put down 9 as it is, put down 4 as it is. Our answer is 4 meter 97 centimeter. Let's move to next. Solve D part. Here we have kilometers and meters to add. Write them vertically. Now add. 2 and 8 10, 0 1 carry. Circle the carried digit. Now add all these 3 units or digits. 9. Nothing to add in 3. Answer is 3 kilometer 905 centimeter. Meters. Zero, 0, 5 and 5 10. Put 0, take 1 carry and 8. Answer is 8 kilometer. Students see 500 मीटर एंड 500 मीटर, जब हमने 500 मीटर को ऐड किया तो हमारे पास आंसर आया 1000 और 1000 मीटर। और आपको पता है 1000 मीटर इज इक्वल टू 1 किलोमीटर। सो देखें ये 1 किलोमीटर, किलोमीटर के नीचे, और हमारे पास टोटल 7 में 1 किलोमीटर ऐड किया तो टोटल 8 किलोमीटर आंसर आ गया। अंडरस्टैंड? ये बात नहीं आपने भूलनी। 100 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 मीटर एंड 1000 मीटर्स इक्वल टू 1 किलोमीटर। लर्न इट बाय हार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन ऐड करते हैं किलोमीटर्स और मीटर्स में। 0, 8 and 2 10, take 1 carry to next. 5 and 4 9 1 10, again put 0 in answer, take 1 carry to next, add all 3 ones, answer is 3 kilometer. Next we have again kilometers and meters to add. 5 10, take 1 carry. 9 and 7 16 and 1 17, write 7 in answer, take 1 carry in kilometers. Now add kilometers. There we have 4 kilometers 705 meters. With the same process, students, you can solve your additions in kilometers, meters and centimeters. Now here we have exercise 2. Word problems. Let's solve these word problems. The first one is
two rulers are 60 centimeter and 30 centimeter long. What is their total length? By adding 60 centimeter and 30 centimeter, we can get the total length of these two rulers. Let's see in our exercise 2, word problem 1. First ruler is 60 centimeter long, second ruler is 30 centimeter long. Find out total length. Normal addition की तरह ऐड करेंगे. 6 and 3 is 9. Total length of these two rulers are 90 centimeter. Let's go and see our next word problem. And next word problem is Ali is 130 centimeter tall. Rizwan is 5 centimeter taller than Ali. It means कि रिजवान जो है वो अली से 5 सेंटीमीटर टॉलर है. तो कितनी हाइट है रिजवान की? तो 130 में 5 को ऐड करें तो टोटल हाइट पता चल जाएगी रिजवान की. ठीक है. Ali's height is 130 centimeter. Rizwan is taller than Ali 5 centimeter. Add these 5, 3 and 1. Height of Rizwan is 135 centimeter. The next word problem is C1. A bee flies 13 meter above the ground. ज़मीन से ऊपर एक बी जो है वो फ्लाई करती है 13 मीटर. अ बर्ड फ्लाइज 800 सेंटीमीटर. बी जो है वो मीटर्स में फ्लाई करती है और बर्ड सेंटीमीटर्स में. अबव द बी. हाउ हाई अबव द ग्राउंड डज द बर्ड फ्लाई? अब हमारे पास क्या इंफॉर्मेशन है? अ बी फ्लाइज 13 मीटर्स एंड अ बर्ड फ्लाई 800 सेंटीमीटर मोर देन बी. ठीक है. फाइंड आउट क्या करना है? हाउ हाई अ बर्ड फ्लाई. फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे? उसी फार्मूला को जो हमने लर्न किया था. डू यू रिमेंबर दैट 100 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 मीटर. ओके. और अब आपको पता है बी जो है वो हाउ मच अबव फ्लाइज? इट फ्लाइज 13 मीटर्स. 13 मीटर मीन्स 1300 सेंटीमीटर. ठीक है. हमें पता 1 मीटर 100 सेंटीमीटर का है तो 13 मीटर 1300 सेंटीमीटर के होंगे. ठीक है. फर्स्ट ऑफ ऑल कन्वर्ट मीटर्स इनटू सेंटीमीटर, देन ऐड both values. Bee flies above the ground 1300 centimeter. Bird flies above the bee 800 centimeter. Now add 8 and 3 11. 1 take 1 carry. 1 and 1 2. It means 100 centimeter. Bird fly above the ground 100 centimeter or 20 meter 100 centimeter. If we convert it into meters, 2000 meters means 2000 centimeter means 2 meter and 100 centimeter. ठीक है. ये दो आंसर हैं हमारे पास, एक सेंटीमीटर्स में और एक मीटर्स में. ट्वेंटी 100 centimeter. First answer. Second answer is 20 meter and 100 centimeter.
ठीक है. Okay, let's move to next word problem and solve it. And the next problem is D. Kamran is 150 centimeter tall. If he jumps 50 centimeter off the ground, how high does the top of his head reach from the ground? 150 सेंटीमीटर उसकी अपनी हाइट है, 50 सेंटीमीटर उसने जंप लगा दिया, तो कितना वो ऊंचा ज़मीन से हो गया. लेट्स फाइंड आउट बाय एडिंग. जी, Kamran is tall 150 centimeter and he jumps off 50 centimeter. The head is above from the ground. In total 0, take 1 carry, 200 centimeter. सेंटीमीटर, इसको आप 2 मीटर्स भी लिख सकते हैं. ठीक है. ओके, एक्सरसाइज 2 इज कंप्लीट नाउ. लेट्स मूव टू नेक्स्ट, सब्ट्रैक्शन ऑफ यूनिट्स ऑफ लेंथ. अब लेंथ ही को हम सब्ट्रैक्ट करना सीखेंगे. स्टैंडर्ड यूनिट्स ऑफ लेंथ वी नो दैट किलोमीटर, मीटर एंड सेंटीमीटर्स हैं. सेंटीमीटर इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लेंथ. मीटर सेंटीमीटर से बड़ा, और फॉर द लार्जर यूनिट्स वी यूज किलोमीटर्स. नाउ एक्सरसाइज 3 इज सब्ट्रैक्ट द फॉलोइंग यूनिट्स ऑफ लेंथ. इनको अब उसी तरह से किलोमीटर्स और मीटर्स की हेडिंग में कॉलम्स में वर्टिकली सेट करके फिर इसको हम सब्ट्रैक्ट करेंगे. एडिशन में ऑर्डर मैटर नहीं करता, बड़ी अमाउंट ऊपर लिखें या छोटी अमाउंट ऊपर लिखें, एडिशन का जो आंसर है वो सेम आता है. बट सब्ट्रैक्शन के लिए हमने लार्जर अमाउंट को ऊपर और स्मॉलर को नीचे लिखना है. ठीक है, चलें नेक्स्ट सॉल्व एक्सरसाइज 3. किलोमीटर्स और मीटर्स में वर्टिकली इनको अरेंज करने के बाद अब इसको हम सब्ट्रैक्ट करते हैं. 0, borrow 1 from 9, cut it to 8. Now subtract 8 from 12. Answer is 4. 3 from 8, 5. Put down 2 as it is. Answer is 2 kilometer 540 meter. Let's see the next one. Here we have again kilometers and meters to subtract. Let's start. Take 1 as borrow from 5. Now subtract. 2 kilometer 21 meter. इनके साथ बाद में आप लिख भी सकते हैं 2 किलोमीटर 21 मीटर. Next one. Now we have meters and centimeters. सेंटीमीटर छोटा है, उसको राइट साइड पर, मीटर को लेफ्ट साइड पर. Subtract 6, 8 and 2. Answer is 2 meters 86 centimeter. Next question is, we have only centimeters to add. अब आप सेंटीमीटर्स लेफ़्ट साइड पर भी लिख सकते हैं और ऊपर कॉलम में हेडिंग देकर भी उसको सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं. Take 1 borrow from 8, subtract 9 from 10, 7 from 7, 0, put down 1 as it is. 101 centimeter is answer. Let's subtract the next one.
we cannot subtract 5 from 2, so take 1 borrow from kilometers. Now we have 6 nothing in kilometers, so 0. Answer is 600 meters. Let's do the next one. Subtract 4 meters 3 meter from 4 1. Write down 4 as it is. Answer is 4 kilometer 1 meter. ठीक है. With the same process, you can solve all type of subtractions regarding to length. Just arrange them horizontally or vertically according to their column headings. Let's check out the next exercise, exercise 4, the word problems. And the first one is, an apple tree is 210 centimeter and a mango tree is 170 centimeter tall. How much shorter the mango tree from apple tree? First of all, write down statements. An apple tree is taller by 210 centimeter and mango tree is tall 170 centimeters. Subtract them to find out how much mango tree is shorter. 0. Take 1 carry. Subtract 7 from 11. Take 1 borrow to convert 1 in 11. Now subtract 7 from 11 and answer is 4. Here we have 1 subtract from 1, so answer is 0. It means 40 centimeter. Mango tree is shorter than apple tree by 40 centimeter. Let's see the next word problem, and the information says a line A is 120 centimeter long and other line B is 95 centimeter long. How much shorter is line B than line A? सेम उसी तरह जिस तरह मैंगो ट्रीज थे, अब ये लाइन ड्रॉ की है और लाइन A जो है वो बड़ी है, लाइन B छोटी है. लाइन B कितनी छोटी है ये हमने फाइंड आउट करना है. Line A is long 120 centimeter, line B is long 95 centimeter. Subtract both line B from line A, A's length. Take a borrow, subtract 5 from 10. Now we have 1. Take again a borrow, subtract 9 from 11. Is 2. It means line B is shorter than line A by 25 centimeter in length. Let's do the next word problem. D. Information about D in your book is, the bank is 900 meter away from my house. My school is 2 kilometer 300 meters away from my house. How much
farther is my school than the bank from my house. अब देखें, इसको एज अ स्टूडेंट कंसीडर करके देखते हैं कि जो बैंक है वो घर से 900 मीटर दूर है और जो स्कूल है वो 2 किलोमीटर 300 मीटर दूर है घर से, ठीक है। स्कूल और बैंक दोनों का डिस्टेंस मेजर किया जा रहा है घर से। अब सेकंड क्या है, फाइंड आउट क्या करना है कि बैंक जो है वो स्कूल से कितना दूर है। पहले तो हमने दोनों चीज़ें देखी ना, घर से कितनी दूर है, अब स्कूल से कितना दूर है बैंक, ये फाइंड आउट करना है। तो स्कूल के डिस्टेंस में से बैंक का डिस्टेंस अगर हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास टोटल डिस्टेंस ऑफ बैंक मिल जाएगा। स्कूल से कितना दूर है बैंक, चले जी। स्कूल इज़ अवे फ्रॉम हाउस, ऊपर लिख दिया लार्जर अमाउंट। बैंक इज़ अवे फ्रॉम हाउस, इसको सब्ट्रैक्ट करना है क्योंकि हमने स्कूल से बैंक को मेजर करना है। 0 0 टेक 1 बारो, सब्ट्रैक्ट 9 फ्रॉम 13, 4 and 1 kilometer and 400 meter. School is farther than bank from the house is 1 kilometer and 400 meter. ठीक है जी। Let's see the next one. And the problem is, last week I cycled 5 kilometer and 320 meters. My friend cycled 3 kilometer and 500 meter less than me. How much distance did my friend cover on his bicycle? जी कंपटीशन हो गया है आपका और आपके फ्रेंड का साइकिलिंग में, ठीक है। लेट्स फाइंड आउट कि आपसे कितना कम साइकिलिंग की है आपके फ्रेंड ने। ऑन द बिहाफ ऑफ स्टूडेंट्स स्टेटमेंट्स लिखी हैं। आई साइकिल लास्ट वीक 5 किलोमीटर 320 मीटर। माई फ्रेंड साइकिल 3 किलोमीटर 500 सेंटीमीटर। अब उसने कितना कम किया है, इनको सब्ट्रैक्ट करने से पता चल जाएगा कि फ्रेंड ने कितना कम डिस्टेंस कवर किया साइकिल से। सब्ट्रैक्ट, टेक 1 बारो, जी। फ्रेंड कवर्ड डिस्टेंस 1 किलोमीटर एंड 820 मीटर लेस देन मी, ठीक है। इधर लिख देते हैं लेस देन मी। 1 किलोमीटर 820 मीटर कम डिस्टेंस कवर किया है उसने साइकिलिंग में। द नेक्स्ट टॉपिक इज फ्रॉम मेजरमेंट्स वेट। फर्स्ट वन वी हैव डन लेंथ, सेकेंड वन इज वेट। अब वेट क्या होता है? वेट टेल अस हाउ हैवी एन ऑब्जेक्ट इज, ठीक है। वेट से हमें क्या पता चलता है? वेट से हमें पता चलता है कि कोई भी चीज़ कितनी वज़नी है। And the standard unit of weight is gram, and for the bigger measurements kilograms are used. The heavier objects we use 1 kilogram showed by kg. Here g means gram, kg means kilogram. 1 kilogram equal to 1000 ग्राम। जैसे
मेजरमेंट्स में किया ना हमने 1000 मीटर इक्वल टू 1 किलोमीटर, इसी तरह 1000 ग्राम्स इक्वल टू 1 किलोग्राम। कोई भी चीज़ जो किलोग्राम्स तक पहुंचती है इट मीन्स उसके अंदर 1000 ग्राम्स मौजूद हैं। लेट्स डू एडिशन ऑफ यूनिट्स ऑफ वेट्स। सेम उसी तरह हमने हेडिंग्स देनी है कॉलम्स में, पहले मीटर, सेंटीमीटर, मीटर और किलोमीटर में दे रहे थे, अब हमने वेट को मेजर करना है तो ग्राम और किलोग्राम से हेडिंग देनी है। ये जो जी एंड के जी हैं ये डिफरेंस शो करते हैं कि एक्चुअली हम मेजर किस चीज़ को कर रहे हैं। ठीक है, अगर यहाँ पर हम के एम लिख दें तो इट मीन्स कि वी आर मेजरिंग द डिस्टेंस, किलोमीटर्स में ऐड कर रहे हैं। यहाँ के जी है तो ये हमें बता रहा है कि हम वेट को मेजर कर रहे हैं किलोग्राम्स में। लेट्स स्टार्ट एडिशन। सिंपली वही मेथड, उसी तरह जस्ट ऐड द नंबर्स 6, 5, 4 and 1. The next one is add 8 and 6, 14. Take one carry to next. 4 and 9, 13. Add the carried digit 1. Again 14. Put down 4 in answer. Take one carry. 1 and 4, 5 and 1, 6. Write down 5 as it is. 5 kilogram and 644 gram is our answer. Next, addition in kilogram and grams. 0, 5 and 4, 9, 6, put down 6 as it is, put down 3 as it is. 3 kilogram 690 ग्राम इज आर आंसर। ठीक है, लेट्स सॉल्व द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 5। Zero, 8 and 2, 10, 0, take one carry, 5, 9 and 1, 10, put down 0, take one carry to next, under the kg. Now add all these 3 units and we have 5 kg and 0 gram. It means total we have weight in 5 kilogram. Next question is 0, again 8 and 2, 10, 0, सेम नंबर्स हैं, ऐसे लगता है वही क्वेश्चन वापस आ गया। 5 and 4, 9 and 1, 10, take one carry to next column, 5 and 1, 6, answer is 6 kilogram. देखें, बड़ी अमाउंट नीचे है, छोटी अमाउंट ऊपर है। एडिशन में ऑर्डर मैटर नहीं करता, आंसर पर इफ़ेक्ट नहीं करता। 6 and 4, 10, 0, टेक वन कैरी, अगेन 10, टेक वन कैरी, 6 and 2, 8 and 1, 9, 900 gram and 1 kilogram. Because we have nothing to add in 1, put down 1 as it is. Answer is 1 kilogram 900 grams. Now let's solve the next exercise. स्टूडेंट्स, आपको समझ आ गई है कि हम वेट को कैसे ऐड कर सकते हैं। The next exercise 6 is word problems, and how we can solve these word problems. A dog is 3 kilograms heavier than a 5 kilogram cat.
एक डॉग जो है वो 3 किलोग्राम हैवियर है, यानी ज़्यादा है 5 किलोग्राम की बिल्ली से। तो टोटल डॉग की कितना वेट हो गया, टोटल वेट उसका 5 + 3 8 किलोग्राम, ठीक है। हाउ हैवी आर द डॉग एंड कैट ऑल टुगेदर, अब ये दोनों मिल के कितने किलोग्राम के हो गए, ठीक है। फर्स्ट करें, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम डॉग को एक साइड पे रखते हैं, कैट को एक साइड पे, ठीक है। पहले तो हम इनका वेट फाइंड आउट कर लेते हैं। चलें जी, आइए इसको सॉल्व करते हैं। ये देखें, डॉग इज़ हैवियर 3 किलोग्राम + 5 किलोग्राम = 8 किलोग्राम। 3 kg + 5 kg क्यों किया, क्योंकि टोटल वेट जो है वो डॉग का 8 है। 5 किलोग्राम की बिल्ली, उससे ज़्यादा 3 किलो डॉग का वेट, तो टोटल वेट ऑफ डॉग इज़ 8 किलोग्राम। नाउ कैट इज़ हैवियर 5 kg। अब इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमने एक्चुअली फाइंड आउट क्या करना है, द वेट ऑफ बोथ कैट एंड डॉग। तो ये हमारे पास आ गया 13 kg। दोनों का वेट ऐड किया 13 kg। इस वर्ड प्रॉब्लम में ट्रिक क्या था, वो सिर्फ डॉग का टोटल वेट फाइंड आउट करना कि उसका टोटल वेट कितना है। हमने 3 और 5 को नहीं, हमने 8 और 5 को ऐड करके दोनों का वेट फाइंड आउट करना है, टोटल वेट डॉग एंड कैट का, ठीक है। नेक्स्ट बी, द वेट ऑफ अ पेंसिल इज़ 115 ग्राम। The weight of a book is 385 gram. What is the total weight of pencil and book? ये सिंपल ही है, जस्ट दोनों के वेट को आपने ऐड कर लेना है। सबसे पहले हमने लिखा वेट ऑफ पेंसिल, फिर वेट ऑफ बुक। अब इन दोनों को ऐड कर लें तो टोटल वेट आ जाएगा। ये इजी ही प्रॉब्लम थी, इसमें कोई हिडन इंफॉर्मेशन नहीं थी। 5 and 5 10, put down 0, take 1 carry. Now 8 and 2 10, 0, again take 1 carry to next 3 4 5, 500 gram. Total weight of both pencil and book is 500 gram. Let's check the next word problem, and here we have Maria used 790 gram of cheese to put in a pizza. पिज़्ज़ा में कितनी चीज़ पुट डाउन करती है, 790 ग्राम्स। देन शी एडिड 250 ग्राम मोर चीज़। हाउ मच टोटल चीज़ डिड शी यूज्ड, हमने फाइंड आउट क्या करना है। पहले उसने पिज़्ज़ा बनाने के लिए जो चीज़ डाली उसमें मज़ीद उसने 250 ग्राम और चीज़ डाली। शी इज़ लवर ऑफ चीज़, सो हाउ मच चीज़ शी यूज टू मेक अ पिज़्ज़ा, एक ही पिज़्ज़ा बनाने के लिए। सिंपल है, ये भी जस्ट ऐड कर दें। दोनों बार जो चीज़ उसने डाली उन दोनों की अमाउंट को आप दोनों के वेट को ऐड कर दें, टोटल वेट निकल आएगा चीज़ का। 5 + 0 = 5, 1 + 5 = 6, 1 and 2 = 3। 365 ग्राम टोटल चीज़ मारिया ने यूज़ की पिज़्ज़ा बनाने में, ठीक है। द लास्ट वर्ड प्रॉब्लम ऑफ दिस एक्सरसाइज इज साद वेज 80 kilograms, बाबर वेज 70 kilograms and कासिम वेज 90 kilograms. How much do the 3 people weigh all together? तीनों को ओके स्टूडेंट्स, ये भी बहुत सिंपल है, जस्ट तीनों का वेट आपने एक कॉलम में लिख लेना है और फिर उसको ऐड कर लेना है। हियर वी हैव द वेट ऑफ साद, वेट ऑफ बाबर एंड वेट ऑफ कासिम, द वेट ऑल टुगेदर। लेट्स ऐड
all three digits. 0. Now 8 and 7. 15. 15 and 9. 15 and 9. 24. Total weight is 240 kilogram. Exercise 6 is complete now. Subtraction. Now next we are going to do subtraction of units of weight in exercise 7. अब वेट्स को सब्ट्रैक्ट कैसे करते हैं? सिंपल उसी तरह फार्मूला सब्ट्रैक्शन एडिशन का वही है, चाहे आप किलोमीटर्स में या किलोग्राम्स में ऐड करें या सिंपली एडिशन का कोई क्वेश्चन करें, रुपीज़ को ऐड करें, जिस तरह इसी तरह सब्ट्रैक्शन का भी फार्मूला वही है। यूनिट साइड से स्टार्ट करें, राइट साइड से, और लेफ़्ट साइड पर स्टार्ट फ्रॉम स्मॉलर मूव टू लार्जर वन। उसी तरह इनको वर्टिकली सेट करेंगे और ग्राम्स और किलोग्राम्स की हेडिंग के नीचे अरेंज करने के बाद इनको हम सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। फर्स्ट वन इज़ नाउ सब्ट्रैक्ट। फार्मूला हमें पता है, 0 में से 9 को सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। वी विल टेक अ बारो फ्रॉम 6, डिक्रीज द वैल्यू ऑफ 6 to 5. नाउ वी हैव 10, cut this 10 to 9. Finally increase the 0 in 10 to subtract 9. Now subtract 9 from 10. Answer is 1. Next we have 9. Subtract 2 from 9. Answer is 7. Next subtract 2 from 5. Answer is 3. किलोग्राम्स में कुछ नहीं है सब्ट्रैक्ट करने के लिए, पुट डाउन 2 एज इट इज़. नाउ वी हैव आंसर 2 किलोग्राम 371 ग्राम. लेट्स सॉल्व द नेक्स्ट वन. अच्छा जी, इसको भी सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं. 0, टेक 1 बारो, सब्ट्रैक्ट 8 फ्रॉम 12, 4 फ्रॉम 4, 0, 40 ग्राम, एंड 2 और 2 टोटली सब्ट्रैक्ट हो गए 0 किलोग्राम. आंसर क्या आया हमारे पास? 40 ग्राम ओनली. एक और प्रैक्टिस करते हैं क्वेश्चन की. सब्ट्रैक्ट 0 फ्रॉम 5. आंसर विल बी 5, क्योंकि 0 जो है वो डिक्रीज नहीं कर सकता किसी वैल्यू को. अब 2 में से 8 सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, तो हम क्या करेंगे? 12 ले लेंगे. 7 में से 7 को 6 में कन्वर्ट कर देंगे, और 12 में से हम 8 सब्ट्रैक्ट कर देंगे. आंसर विल बी 4. 6 में से 6 सब्ट्रैक्ट किया 0, 3 में से 2 1. आफ्टर सब्ट्रैक्शन आंसर इज 1 किलोग्राम 45 ग्राम. ठीक है, चलें इसी एक्सरसाइज के नेक्स्ट क्वेश्चंस करते हैं. कुछ और बिल्कुल इसी तरह आपने किलोग्राम और ग्राम में वर्टिकली अरेंज करने के बाद सिंपली सब्ट्रैक्ट करते जाना है. 0, 5 में से 5 माइनस किया 0, 3 में कुछ नहीं है सब्ट्रैक्ट करने के लिए. ओह 3 नहीं आना, अब 3 को सब्ट्रैक्ट करेंगे. ऊपर कुछ नहीं है, इट मीन्स के ऊपर 0 है सब्ट्रैक्ट करने के लिए. 4 में से एक बारो लेंगे. अब 10 में से 3 को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे. इधर रह जाएगा 3 और इधर आ जाएगा 7. ब्लैक से लिख देती हूँ, आपको सही पता चले. 7. थ्री में से कुछ नहीं सब्ट्रैक्ट करना. राइट डाउन 3 एज इट इज़. अच्छा स्टूडेंट्स, अब ये 7 कैसे आया, थोड़ा सा मैं आपको मज़ीद और एक्सप्लेन कर देती हूँ. एज वी नो दैट
1000 ग्राम मीन्स 1 किलोग्राम, ठीक है। 1000 ग्राम जो है वो 1 किलोग्राम होते हैं। अब देखें 12 जो हमने लिया है वो 1 किलोग्राम में से लिया है, तो इट मीन्स कि 1 जो 12 लिया है वो 1000 ग्राम के इक्वल है। जब 1000 ग्राम में मज़ीद 150 नहीं, ओनली 50 जब हमारे पास आया तो हमारे पास टोटल कितने ग्राम हो गए ग्राम वाली साइड पे? 1050 ग्राम, ठीक है, 1050 ग्राम। अब 1050 ग्राम में से हमने 350 ग्राम माइनस करने थे, तो आंसर आएगा 700। 3 की प्लेस वैल्यू हंड्रेड्स में है ना। और ज़्यादा सिंपल अगर समझाऊं तो 1 जो किलोग्राम से हमने बोरो लिया वो है 1000 ग्राम। अंडरस्टैंड करना है आपने अच्छे से। माइनस हमने करना है इसमें से 300, क्योंकि प्लेस वैल्यू जो 3 की है वो 300 है ना, माइनस 300, तो आंसर क्या आया? 700, ठीक है। दैट्स वाई यहाँ 7 लिखा। समझ आ गई? चलें नेक्स्ट, इसकी प्रैक्टिस करनी है आपने बार बार। समझ नहीं आएगी तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, हम फिर से वीडियो बना लेंगे। चलें जी नेक्स्ट, सब्ट्रैक्ट 13 grams from 235 gram to 8 as it is। 8 किलोग्राम 222 ग्राम। नेक्स्ट करते हैं एक और क्वेश्चन। 0 टेक 12 मेक इट 12, सब्ट्रैक्ट 8 फ्रॉम 12 4। अब 0 है हमारे पास, उसी तरह से यहाँ से 12 लेंगे तो 10 में से 4 माइनस किया 6, आंसर इज़ 640 ग्राम। इधर कुछ नहीं बचा तो 0, किलोग्राम्स में 0। This was the way to solve problems of subtraction, how we can subtract weight। चलें अब हम देखते हैं एक्सरसाइज 8 वर्ड प्रॉब्लम्स। फर्स्ट वर्ड प्रॉब्लम इज Sana needs 400 grams of sugar to bake a cake. She has only 117 grams. How much more sugar does she need? सिंपली सब्ट्रैक्शन का क्वेश्चन है कि सना के पास 400 ग्राम शुगर है केक बनाने के लिए और उसने कितनी यूज़ करनी है? 117 ग्राम सिर्फ उसने यूज़ करनी है और बाकी उसके पास कितनी बच जाएगी? 400 में से 117 ग्राम हम सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। जी Sana need sugar 400, she has only 117, she need more sugar। है मैंने उल्टा पढ़ दिया क्वेश्चन, फिर से पढ़ लेते हैं। उसने यूज़ नहीं की, उसको इतनी और ज़रूरत थी। सना नीड 400 ग्राम, 400 ग्राम उसको चाहिए है, उसके पास 117 ग्राम है, तो उसको और ज़्यादा कितनी चाहिए? मेथड वही है सब्ट्रैक्शन का। चलें सब्ट्रैक्ट करें। टेक 1 borrow from 4, decrease the value of 4 in 3, now again decrease this 10 in 9 और इस 0 को इक्वल टू 10 वैल्यू में कन्वर्ट कर लें। नाउ सब्ट्रैक्ट 7 फ्रॉम 10, 3
1 from 9, 8, and 1 from 3, answer is 2. She needs more sugar, 283 gram. ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट वर्ड प्रॉब्लम पढ़ते हैं. Two boys weigh 115 kilogram in total. 115 ग्राम वेट है टू बॉयज़ का. इफ़ वन बॉय वे इज़ 60 किलोग्राम, व्हाट इज़ द वेट ऑफ द अदर वन. तो 115 में से अगर हम एक लड़के का माइनस कर देते हैं तो दूसरे का ऑटोमेटिकली हमारे पास आ जाएगा. द प्रॉब्लम इज सिंपल of subtraction. Here you can see the total weight of two boys is 115 kilogram. If one boy's weight is 60 kg, subtract it from 115. 5, 11 में से 6 माइनस करें तो 5. Answer is 55 kilogram. The weight of second boy is 55 किलोग्राम. बहुत सिंपल था ये, बहुत आसान क्वेश्चन था. नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं. नेक्स्ट प्रॉब्लम इज अहमद हैड 200 ग्राम ऑफ राइस. ही कुक्ड 70 ग्राम ऑफ इट. हाउ मच राइस इज लेफ्ट विद हिम. 3 क्लास का बच्चा और उसको राइस पकाने आते हैं. ठीक है, 3 क्लास. अहमद ने 200 ग्राम में से 70 ग्राम पका लिए हैं. बाकी कितने रह गए हैं ये हम अब पता करेंगे. ठीक है, वो फिर हम सब मिल के पकाएंगे. चलें. अहमद हैड राइस इन ग्राम्स 200 एंड ही कुक्ड फ्रॉम इट 70. सब्ट्रैक्ट 70 फ्रॉम 200. 0, 3 and 1. आंसर इज 130 ग्राम. 130 ग्राम राइस बच गए 70 ग्राम राइस कुक करने के बाद. द नेक्स्ट प्रॉब्लम, द लास्ट वन ऑफ एक्सरसाइज 8D. नहीं, लास्ट नहीं है, ई भी है. अभी हम डी करने लगे. Yesterday I bought 3 kg 200 gram of grapes and ate 1 kg 600 gram of it. How many gram of grapes are left? Yesterday I bought 3 kg 200 gram यानी 3 किलोग्राम and 200 gram of grapes और खा कितने लिए 1 किलोग्राम 600 ग्राम of it. ठीक है, ये 3 क्लास के बच्चे की बात हो रही है, मैंने नहीं खरीदे. According to book information, make statements. I bought grapes 3 kilogram 200 gram and I ate from them 1 kilogram and 600 grams. Now subtract to find out how much left. Take 1 borrow. 12 में से 6 माइनस करें 6 और 2 में से 1 1 kg और 600 ग्राम बाकी बच गए ग्रेप्स. ठीक है, नाउ लेट्स डू द लास्ट वन, वर्ड प्रॉब्लम ऑफ एक्सरसाइज 8. एंड हेयर वी हैव, लुक एट द बॉक्सेस. ये जो बॉक्स बने हुए हैं बिलो एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस. ABC 3 बॉक्स हैं हमारे पास. फर्स्ट वाले बॉक्स का वेट है 80 ग्राम. सेकंड बॉक्स B बॉक्स का वेट है 50 ग्राम और C बॉक्स का वेट है 30 ग्राम. ठीक है, सबसे छोटा जो है उसका 30 ग्राम, उससे बड़ा 50 ग्राम, सबसे बड़ा जो है वो 80 ग्राम. नाउ व्हाट वी हैव टू डू, द फर्स्ट वन इज़ व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द हैवीएस्ट. हैवीएस्ट कौन है, ये 80 ग्राम वाला A. ठीक है, एंड द लाइटेस्ट बॉक्स, और सबसे हल्का कौन सा है, सबसे कम वज़न वाला कौन सा है, ये C 30. इनका डिफरेंस मीन्स सब्ट्रैक्शन. डिफरेंस कैसे फाइंड आउट होता है, किसी भी नंबर को सब्ट्रैक्ट करने से उसका डिफरेंस पता चलता है कितना है. द वन इज डिफरेंस बिटवीन हैवीएस्ट एंड द लाइटेस्ट बॉक्स इज
सब्ट्रैक्ट 30 फ्रॉम 80, आंसर इज 50 ग्राम। ठीक है, डिफरेंस कितना है इनका? 50 ग्राम। सेकंड क्या था? सेकेंडली हमने क्या फाइंड आउट करना है इसमें से? व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन टू लाइटर बॉक्सेस? जो दो छोटे बॉक्स हैं उनका डिफरेंस कितना है? तो दो छोटे बॉक्स कौन से हैं? सबसे बड़ा ये हुआ तो बाकी दोनों छोटे हुए। ठीक है, चलिए। डिफरेंस बिटवीन टू लाइटर बॉक्सेस एंड इट इज 20 ग्राम। सिंपल। Subtract 30 from 50, answer is 20 gram. Students, exercise 8 is complete and with topic weight. Now next topic is volume और capacity. ठीक है जी, वॉल्यूम और कैपेसिटी। वॉल्यूम ही को कैपेसिटी भी कहते हैं। ठीक है, क्या करना है अब हमने इसमें? क्या है? वॉल्यूम इज द अमाउंट ऑफ स्पेस एन ऑब्जेक्ट occupies. Capacity tells us how much an object can hold. Standard unit of measure of capacity is liter. Smaller unit of measure of capacity is milliliter. अब यहाँ पर भी वही फार्मूला है, 1000 मिलीलीटर जो हैं वो इक्वल टू 1 लीटर हैं। वॉल्यूम और कैपेसिटी जो है वो किसी भी कंटेनर की एबिलिटी को फाइंड आउट करने के लिए यूज़ करते हैं कि उसमें कितनी लिक्विड फॉर्म में कितनी चीज़ होल्ड करने की कैपेसिटी है। ठीक है, जैसे कोई ऑयल बॉटल है, वाटर बॉटल है, तो वो उसकी कैपेसिटी उसके अंदर कितनी लिक्विड फॉर्म में चीज़ फिल कर सकते हैं वहाँ से पता चलती है। ठीक है, जैसे कोई भी आप बॉटल ख़रीदते हो कोक 1 लीटर 1.5 लीटर इस तरह। ठीक है, तो उसका मतलब क्या होता है कि इसके अंदर लिक्विड फॉर्म में कितना जूस या कितनी वो ड्रिंक है। तो स्मॉलर ऑब्जेक्ट कॉल्ड मिलीलीटर एंड द लार्जर मेजरमेंट इज कॉल्ड लीटर। L stands for liter, ml stands for milliliter. 1000 मिलीलीटर इक्वल टू 1 लीटर, ये याद रखना है आपने। इसी तरह हमने कॉलम में ये नेक्स्ट देखें, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन हम करने लगे अब यूनिट्स ऑफ कैपेसिटी के। ठीक है, वॉल्यूम के। तो ये एडिशन है। फर्स्ट एक्सरसाइज 9, ऐड द फॉलोइंग यूनिट्स ऑफ कैपेसिटी। लीटर्स में और मिलीलीटर्स में है इंफॉर्मेशन हमारे पास। अब हमने इनको उसी तरह कॉलम्स में सबसे पहले वर्टिकली लिख लेना है। मिलीलीटर्स को छोटे यूनिट को मिलीलीटर कहते हैं, तो मिलीलीटर का कॉलम हम राइट साइड पर बनाएंगे और लीटर का कॉलम हम लेफ़्ट साइड पर बनाएंगे। उसी तरह कॉलम्स में इनको वर्टिकली अरेंज करने के बाद हम सिंपल एडिशन वाले फार्मूला से ऐड करते जाएंगे कैपेसिटी को। चलें, एक्सरसाइज 9 ऑफ यूनिट 4 मेजरमेंट्स एंड वी आर मेजरिंग कैपेसिटी। ये देखें, मिलीलीटर और लीटर से पता चलेगा कि हम लिक्विड फॉर्म में कैपेसिटी को मेजर कर रहे हैं और वॉल्यूम को मेजर कर रहे हैं। अब हम वज़न किलोग्राम में नहीं और ना ही हम लेंथ मेजर कर रहे हैं मीटर सेंटीमीटर्स में, अब हम कैपेसिटी फाइंड आउट कर रहे हैं। ठीक है, अब एक चीज़ है उसकी कैपेसिटी है, या एक बॉटल है उसकी कैपेसिटी है 2 लीटर 310 मिलीलीटर, सेकंड वन की है 658 मिलीलीटर। टोटल कितनी हो गई, इनको ऐड कर लेते हैं। ऐड देम 8 6 9 एंड 2 लीटर 968 मिलीलीटर। एक और करते हैं, 0 4 and 7 11 1 take 1 carry 4 5 9 and 1 10 0 take 1 carry under the liters 4 and 1 5 liter. Answer is 5 liter and
10 मिलीलीटर। चलें अब एक और क्वेश्चन करते हैं, ये भी एडिशन है फ्रॉम एक्सरसाइज 9। 6 + 0 6, 5 + 0 5, 5 + 4 9, 1 + 2 = 3। 3 लीटर 956 मिलीलीटर। ml मीन्स मिलीलीटर। अच्छा जी, इसी तरह हम इन सब को ऐड करते जाएंगे लीटर्स और मिलीलीटर्स की हेडिंग्स के अंडर। अब नेक्स्ट एक्सरसाइज देख लेते हैं, एक्सरसाइज 10 एंड व्हाट वी हैव टू डू हियर। हियर वी हैव some word problems 1 A B C. Let's solve one by one. The volume of the water in a bucket is 4 लीटर। ये 4 लीटर लिखा हुआ है, 41 नहीं है ये, ठीक है। 4 लीटर 721 मिलीलीटर। If you pour 375 मिलीलीटर more water in it। अब देखें उसी तरह एक बकेट है, उसमें 4 लीटर 721 मिलीलीटर पानी पहले से मौजूद है, उसमें 375 मिलीलीटर और पानी डाल दिया है, तो टोटल कितना हो गया या उस बकेट की वॉल्यूम कितनी है वाटर की। तो अब हम इन दोनों को ऐड करेंगे और टोटल वॉल्यूम ऑफ बकेट मिल जाएगी। वाटर बकेट जी, वॉल्यूम ऑफ वाटर बकेट 4 लीटर 721 मिलीलीटर। सेकंड उसमें जो मज़ीद पानी डाला वो लिख लें नीचे, और अब इनको हम ऐड कर लेते हैं। 6 9 7 and 3 10 0 1 कैरी 4 and 1 5 5 लीटर 96 मिलीलीटर टोटल वॉल्यूम ऑफ वाटर बकेट है, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड प्रॉब्लम देखते हैं। Let's read the next word problem of exercise 10. The volume of an oil can is 6 liter 500 milliliter, while that of the other oil can is 2 liter 500 milliliter. What is their total volume? दो कैन हैं, उनकी डिफरेंट कैपेसिटी है, टोटल कैपेसिटी हमने फाइंड आउट करनी है बाय एडिंग द कैपेसिटी ऑफ बोथ। देखें ऑयल कैन 1 हमने ऊपर लिखा, कैन 2 की कैपेसिटी नीचे। अब इन दोनों को ऐड कर लें, टोटल वॉल्यूम मिल जाएगा। 5 and 5 10 0 1 कैरी अंडर द लीटर्स। नाउ ऐड द डिजिट्स against the liters। 2 6 8 and 1 9 9 liter is the total volume or total capacity of both cans। The next one is, let's read first। Maria used 5 liter 896 milliliter of water for washing and 2 liter 894 milliliter for cooking। How much water did she use in total? ऐड कर दें कुकिंग का और वॉशिंग का वाटर। ये देखें, मारिया यूज वाटर फॉर वॉशिंग, मारिया यूज वाटर फॉर कुकिंग, दोनों को ऐड कर दें। 6 and 4 10 0 टेक 1 कैरी। 9 and 9 18 and 1 19 राइट डाउन 9 in आंसर, टेक 1 कैरी। 8 8 16 1 17 7 take 1 carry to next, and 2 5 7 and 1 8 8 liter 790 milliliter water she used total for cooking and washing, ठीक है। नेक्स्ट एक्सरसाइज 11 फ्रॉम द सेम टॉपिक, वॉल्यूम और कैपेसिटी। अब हमने क्या करना है, सब्ट्रैक्ट द फॉलोइंग यूनिट्स ऑफ कैपेसिटी। अब हमने इनको सब्ट्रैक्ट करना है। सिंपल हम मेजरमेंट्स में लेंथ, वेट और कैपेसिटी को सब्ट्रैक्ट और ऐड ही करते जा रहे हैं। उसी तरह आपने लीटर मिलीलीटर की हेडिंग्स देनी है और
उसमें आपने अमाउंट्स फिल करनी है, फिर उसको हमने सब्ट्रैक्ट कर लेना है। एक्सरसाइज 11, सब्ट्रैक्ट द फॉलोइंग यूनिट्स ऑफ कैपेसिटी। 1 लीटर है और ये मिलीलीटर है। चलें जी, सब्ट्रैक्शन स्टार्ट करते हैं। इसी तरह 0 में से 0 सब्ट्रैक्ट किया, 0, 4 में से 8 नहीं कर सकते, यहाँ से एक कैरी ले लेंगे और बोरो कर लेंगे 1। अब हम 14 में से 8 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। सब्ट्रैक्ट 6, आंसर इज 6। नेक्स्ट, थ्री में से 9 सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते तो इधर से 1 बारो कर लेंगे लीटर्स में से। अब आप 13 में से 9 सब्ट्रैक्ट कर दें, आंसर इज़ 4। ठीक है, 1 लीटर 440 मिलीलीटर में से जब 980 मिलीलीटर सब्ट्रैक्ट कर दिया तो कितना टोटल 460 मिलीलीटर हमारे पास बाकी बच गया। नेक्स्ट, सब्ट्रैक्शन ऑफ लीटर एंड मिलीलीटर। 0, 5 में से 5 माइनस किया 0। अब ये सेम उसी तरह का क्वेश्चन है जो हमने पहले पीछे किलोग्राम और ग्राम्स में नहीं किया था, अमाउंट्स भी वही हैं 350। अब हमें पता है कि मिलीलीटर 1000 मिलीलीटर इक्वल टू 1 लीटर। ठीक है, तो सेम उसी तरह इधर अगर कुछ नहीं है तो इट मीन्स यहाँ 0 है। अब हम 3 में से 1 बारो करेंगे, ये 10 के इक्वल हो जाएगा। इट मीन्स के 1050 ऊपर वाली अमाउंट बन जाएगी, उसमें से हमने 350 सब्ट्रैक्ट कर देना है, आंसर आ जाएगा 7। इधर हमारे पास रह गया 2, बाकी 2 नीचे ले आए। 2 लीटर 350 मिलीलीटर आंसर। ठीक है, ये वही फार्मूला है कि टोटल हमारे पास ऊपर जो हैं, जब हमने 1000 में से यानी लीटर में से कैरी लिया तो उसको मिलीलीटर में कन्वर्ट किया, वो 1000 मिलीलीटर के अकॉर्डिंग हो गया। 1000 मिलीलीटर में से अगर हम 300 मिलीलीटर माइनस करते हैं तो आंसर आ जाता है 700। तो हंड्रेड्स में 7 लिख देंगे। ठीक है, चलें नेक्स्ट करते हैं। 0, 0 यहाँ से कैरी करें, 13 में से 4 माइनस बारो लिया, 13 में से 4 को माइनस कर दें तो क्या आंसर आ गया 9। 900 मिलीलीटर इज आवर आंसर। इफ़ वी सब्ट्रैक्ट, ये देखें 1300 मिलीलीटर में से अगर हम 400 मिलीलीटर माइनस करें तो 900 मिलीलीटर आंसर आ जाता है। ठीक है, ये 1 का मतलब 1000 है ना, तो इसके साथ लगाया तो 1300 बन गया। बिल्कुल इसी तरह आपने सब्ट्रैक्शन कर लेनी है कैपेसिटी के अकॉर्डिंग। कोई भी प्रॉब्लम आप इजीली सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। अभी हम देखते हैं एक्सरसाइज 12 में नेक्स्ट हमने क्या करना है। एक्सरसाइज 12 है सॉल्व द फॉलोइंग वर्ड प्रॉब्लम्स। A bottle has a volume of 1 liter 500 milliliter of water. If you take 250 milliliter of water out of it, टोटल वाटर कितना था बॉटल में 1 लीटर और 500 मिलीलीटर, ये 1.5 लीटर वाली बोतल थी। ठीक है, उसमें से
इफ़ यू टेक 250 मिलीलीटर, यानी एक छोटी बॉटल या एक ग्लास वाटर आपने निकाल लिया, हाउ मच वाटर विल बी लेफ्ट इन इट, अब उसमें कितना रह गया। ये तो हम वर्बली भी कर सकते हैं, ज़बानी भी बता सकते हैं कि कितना रह गया। चलिए सॉल्व करके देखते हैं। वी आर डूइंग एक्सरसाइज 12। Solve the word problems. स्टेटमेंट्स बना लेते हैं। बॉटल हैज़ अ वॉल्यूम ऑफ वाटर कितना है 1 लीटर 500 मिलीलीटर। हम लीटर और मिलीलीटर वाली हेडिंग ऊपर कर लेते हैं, लीटर मिलीलीटर, ठीक है, फॉर कन्वीनियंस, इजी अंडरस्टैंडिंग के लिए। इफ़ यू टेक 250 मिलीलीटर ऑफ वाटर, हेडिंग क्या बना देते हैं इसकी, स्टेटमेंट बनाएंगे वाटर टेकन फ्रॉम बॉटल इज़ इक्वल टू 250 मिलीलीटर। अब मिलीलीटर के नीचे हम लिख देते हैं 250। अब हमें पता है कि हमने इसको सब्ट्रैक्ट करना है, सब्ट्रैक्ट इट, 0 5 में से 1 बोरो करें, इधर 4 रह जाएगा, बाकी 10 में से 5 माइनस किया 5, 4 में से 2 माइनस किया तो 2, ठीक है। 1 के नीचे कुछ नहीं है सब्ट्रैक्शन के लिए, लीटर, 1 लीटर एज इट इज़ नीचे आ गया। तो टोटल बाकी कितना है लेफ्ट, वाटर लेफ्ट इन बॉटल इक्वल टू 1 लीटर 250 मिलीलीटर। Next word problem is, let's read it first. A fish tank with a capacity of 10 liter 500 milliliter is filled with 2 liter 500 milliliter of water. अच्छा, अब ये देखें, सिंपल बात को थोड़ा मुश्किल करके बता दिया। एक फ़िश टैंक है, उसके अंदर 10 लीटर और 500 मिलीलीटर वाटर जो है वो डाला जा सकता है, बट उसके अंदर कितना वाटर है, 2 लीटर है और 500 मिलीलीटर है। हाउ मच मोर वाटर इज़ नीडेड टू फिल इट अप, कितना पानी और डालना है कि वो भर जाए। तो वो हमें पता है 10 लीटर कैपेसिटी है, 2 लीटर उसके अंदर है, 8 लीटर और डाल दें, ठीक है। लेकिन अभी हम इसको बाकायदा सॉल्व करते हैं, ठीक है, प्रॉपरली। चलें जी, बी पार्ट ऑफ एक्सरसाइज 12, वर्ड प्रॉब्लम, फिश टैंक हैज़ कैपेसिटी। चलें स्टेटमेंट्स बनाते हैं पहले। फिश टैंक हैज़ कैपेसिटी ऑफ वाटर या विद द कैपेसिटी ऑफ वाटर, जो मर्जी लिख लें। टेन लीटर 500 मिलीलीटर नज़र आ रहा है, इधर कर देते हैं। चलिए, उसी तरह से लीटर और मिलीलीटर की हम कॉलम हेडिंग दे देते हैं फॉर इजी। नेक्स्ट, उसके अंदर कितना वाटर है, वाटर फिल्ड इन इट इज इक्वल टू 500।
more water need to fill it fully. पूरी तरह इसको भरने के लिए कितना पानी चाहिए, ये सब्ट्रैक्शन के बाद पता चलेगा. आप देखें 0 0, 5 में से 5 सब्ट्रैक्ट किया 0, 10 में से 2 सब्ट्रैक्ट किया तो 8 लीटर. मैंने कहा था ना कि ये तो हम ऐसे ऐसे भी कर सकते हैं. नेक्स्ट इज सी. Bathtub is filled with 320 liter of water. If the capacity of the tub is 1000 liter, how much more water is needed to fill it up completely? अच्छा, 320 लीटर पानी उसमें है और उसकी कैपेसिटी 1000 लीटर की है बाथ टब की. How much water needed to fill it up? 680. चले लेट्स नेक्स्ट पेज पर कर लेते हैं. C. Bathtub is filled with स्टेटमेंट बनाएं. वाटर भी लिख लेते हैं. Bathtub is filled with water equal to 320 liter. Its capacity is 1000 liter. How much more water needed? More water needed to fill tub is equal to. स्टूडेंट्स आप देखें लार्जर अमाउंट हमने पहले लिखनी है ऊपर, सब्ट्रैक्शन में लार्जर अमाउंट ऊपर और स्मॉलर नीचे, फिर सब्ट्रैक्शन होती है. 1000 लीटर सब्ट्रैक्ट 320 लीटर. चलें सारे ज़ीरो को 9 शुरू कर दें, 12 करना. फर्स्ट 0 में से 0 सब्ट्रैक्ट किया 0. आप 0 में से 2 सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते तो इस 10 में से इधर 12 किया, ये 9 रह गया. 10 में से 2 सब्ट्रैक्ट किया 8 और 9 में से 3 तो 6. टोटल 680 लीटर वाटर चाहिए. ठीक है, 680 लीटर वाटर चाहिए टब को पूरा भरने के लिए. चलें नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ चलते हैं. द नेक्स्ट प्रॉब्लम इज़ इफ़ यू ड्रिंक 150 मिलीलीटर आउट ऑफ 1 लीटर बॉटल ऑफ वाटर, हाउ मच वाटर विल बी लेफ्ट इन द बॉटल. चलें ये अब आप मुझे ज़रा बताएं सोच के, हम 1 में से 150 को कैसे सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं. इफ़ यू ड्रिंक 150 मिलीलीटर, फिर से देख लें प्रॉब्लम. इफ़ यू ड्रिंक 150 मिलीलीटर आउट ऑफ 1 लीटर, ठीक है, हाउ मच वाटर विल बी लेफ्ट. सबसे पहले तो आप ये बताएं 1 लीटर में से 150 लीटर वाटर आप ले सकते हैं. सोचें. जी हाँ, कैसे. 1 लीटर इक्वल टू 1000 मिलीलीटर.
और 1000 मिलीलीटर में से कितना हमने ले लिया 150। चलिए अब इसकी स्टेटमेंट्स बना लेते हैं। फर्स्ट टी पार्ट की, you have water, one liter, equal to 1000 milliliter। ठीक है, you drink out of it equal to 150 milliliter। water left in bottle, water left equal to, subtract 150 from 1000, 0 में से 0 सब्ट्रैक्ट किया 0। अब इस 10 में से 1 बारो करके इसको 10 बना लें, ये 10 9 हो जाएगा। सब्ट्रैक्ट 5 फ्रॉम 10 5, 1 फ्रॉम 9 8, बाकी पानी कितना रह गया 850 मिलीलीटर। द नेक्स्ट प्रॉब्लम एंड द लास्ट प्रॉब्लम ऑफ एक्सरसाइज 12, look at the containers below and answer the following questions। फर्स्ट कंटेनर है 100 मिलीलीटर का, सेकंड कंटेनर जिसका नाम बी है वो है 750 मिलीलीटर का, तीसरे कंटेनर में है 1000 मिलीलीटर कैपेसिटी, फोर्थ वन डी है 500 मिलीलीटर और ई है 250 मिलीलीटर। सारी मेजरमेंट्स टोटल मिलीलीटर्स की मेजरमेंट्स आपको मिल गई हैं। अब हमने इनका करना क्या है, विच टू कंटेनर्स कैन होल्ड इक्वल टू द टोटल कैपेसिटी ऑफ कंटेनर सी। अब ये 5 कंटेनर में से कौन से 2 कंटेनर ऐसे हैं जिनको मिलाएं तो सी यानी 1000 मिलीलीटर बन जाता है। ठीक है, अब हमने इनको ऐड करके देखना है कि कौन, देखें 750 में क्या ऐड करें कि 1000 बन जाए, बी ही लेना है ना, विच टू कंटेनर इक्वल टू सी। ये देखें बी और ई फिल करें इसमें ज़रा, ये देखें 1000 बन गया है ना। बी और ई जो है इसका आंसर होगा बी एंड ई कंटेनर आर इक्वल टू सी कंटेनर। Next one is, what is the difference between the capacity of container B and the capacity of container C? C में से B को माइनस कर देंगे तो इनका डिफरेंस पता चल जाएगा। इधर ही कर देती हूँ। कंटेनर B की कैपेसिटी है कितनी 750 और कंटेनर ए की कैपेसिटी है 1000। सी की है वो, तो सी लिखना है यहाँ पे। ठीक है, अब इनका डिफरेंस 0 में से 0 सब्ट्रैक्ट किया 0, 9 इसको 10 बना लें, 10 में से 5 5, 9 में से 7 माइनस करें 2, इसका मतलब 250 मिलीलीटर डिफरेंस है सी और बी का। ठीक है, 250 मिलीलीटर डिफरेंस है बी और सी का। बी कंटेनर और सी कंटेनर का डिफरेंस कितना है, जितना ई का है। इसका आंसर ई भी हो सकता है, ई कंटेनर के जितना डिफरेंस है। इफ़ यू नीड एग्जैक्टली 2 लीटर्स विच कंटेनर वुड यू पिक।
अगर आपको 2 लीटर चीज़ चाहिए है तो कौन कौन से कंटेनर आप लेंगे कि आपको 2000 मिलीलीटर मिल जाए। 2 लीटर का मतलब 2000 मिलीलीटर है ना। ये ऑल कंटेनर्स हैव मिलीलीटर कैपेसिटी, मिलीलीटर में इनकी मेजरमेंट शो की जा रही है। तो हम ऐसे कंटेनर उठाएंगे जो 2000 मिलीलीटर के इक्वल हो जाए। ठीक है, सबसे पहले तो 1000 के इक्वल सी ले लें, सी कंटेनर। फिर सबसे ज़्यादा कैपेसिटी वाला ले लें, बी। और थर्ड वन, अगर इसमें ये देखें अभी हमने 250 ऐड किया था, 1000 के इक्वल आ गया था, तो सी वाला क्या ई वाला ले लें, ई कंटेनर। इट मीन्स के बी, सी, बी और ई 3 कंटेनर अगर हम लेते हैं तो हमारे पास 2 लीटर लिक्विड फिल करने की कैपेसिटी बन जाएगी। नेक्स्ट लास्ट ऑप्शन इज विच कंटेनर इज हाफ ऑफ कंटेनर सी। कंटेनर सी इज इक्वल टू 1000 मिलीलीटर और इसका हाफ क्या होगा 500 मिलीलीटर, तो डी है जी, हाफ ऑफ सी। ओके स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 12 इज कंप्लीट नाउ और आपका यूनिट नंबर 4 भी कंप्लीट हो गया। इसी के साथ मेजरमेंट्स, हमने मेजरमेंट्स में सीखा लेंथ, वेट एंड कैपेसिटी। ठीक है, उनको ऐड करना और उनको सबट्रैक्ट करना। और वर्ड प्रॉब्लम्स में, इन रियल लाइफ प्रॉब्लम्स में इनको कैसे यूज़ कर सकते हैं ये भी हमने सीखा। इसकी प्रैक्टिस करें, मोर एंड मोर प्रैक्टिस करें। ठीक है, और फिर हम नेक्स्ट यूनिट के साथ फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।